So, good evening, everyone. And we are here with the third round of jury over here. And our jury tonight is Radhika Jadhav. She is the jury for mimicry. So, without wasting much time, I'll let you know about a little bit about Radhika. Radhika is a PhD in research. She's a research scholar of Pune University. She is also the jury of mimicry and mime. Since there weren't many candidates for mime, so we abolished that um, category. Okay. Her topic of research is drama therapy for school, social and emotional intelligence of pre-adolescents. Radhika holds a PhD in human rights, women and child rights, and she started working at a very young age of 16 with an advertising agency in Pune. Thanks to her keen interest in theatre and elocution, she has worked with an organization promoting drama therapy for over 10 years. So, for you can say for basically more than 10 years, she's been teaching various forms of theatre to children all along. And theatre, is a very vast field, it covers a lot of things. And she's conducted teacher training workshops in B.Ed colleges and schools to employ theatre in their teaching and learning process to make the learning process more effective. And that is what is the change that is coming out in the teaching nowadays. She's also a part of three amateur plays done by the amateur dramatic clubs in Shimla. So, without wasting much time, we'll go on to Radhika and we'll get her to join us over here, and then we shall ask her about the criteria of judgment and everything, and you can ask any doubt that you have. So, welcome, Radhika. How are you? You fine? Thank you so much, Mrs. Gai. Thank you. So anybody out there who can tell us if it's we are audible? Good evening, Rajni Yadav. Can you tell me if we are both me and Radhika, we are both audible or not to you? Because from my side the volume is full, and I believe Radhika ka bhi volume fully hai computer ka. So we just need a thumbs up before we start proceeding. Can you hear us? So okay. Radhika, you have been in theatre for past 10 years. So, fine, Rajni, I got your message. Thank you. Yes. So, can you tell us a little about yourself, besides what I have introduced? How was your journey? And then we'll come on to the question answer forum. फिर तो वो आते ही रहेंगे questions, उसका कोई कमी नहीं है. So, a little about yourself, your journey, बिल्कुल and how you enjoy बिल्कुल theatre, और कितना मजा आता है, और theatre का experience जो होता है ना, I think it's a different world in itself. So, just a little about theatre world from you. बिल्कुल right. So I started with theater when I was in school, taking part in all the plays which were in school. Then went on to participate in district level, state level plays. Then in college, I did a lot of street plays. We took part in a lot of intercollegiate fests like Malhar and Moodai, held in Mumbai and in Pune, in Bangalore. And from there, my journey of being a theater artist started. We were recently in Shilla. I was lucky enough to associated with the Amateur Dramatic Society there. So the best part on stage is that you play another character. You can get into the skin of somebody else, understand how that person thinks, and execute or essay your role on stage. And when you're on stage, you're the king of everything. True. Nobody is judging you. Nobody can say anything from the audience. So the stage, when it is lit, and the audience is in dark, you're the king. You can do anything, whatever you want to do. So basically, what I think is So theatre is that's a how whole my new journey world. of theater began. Yes, bilkul. Absolutely. You're right. You're right. And it's not only your own feelings. Hello. Am I clear? You can hear me clearly, na? Your voice is little low. I can't hear you Uh-huh. very clearly.
Okay, my volume control is 100 over here. मैं तो जहां तक है मेरा तो पूरा है. Okay. So कोई नहीं, ठीक कोई है. नहीं, I I'll will try speak and a little louder, no problem. So right. what I was thinking, so Thank you. what I was thinking is like mimicry also comes into theater only. So बहुत लोगों को ये रहता है कि बिल्कुल. मिमिक्री क्या है. तो थोड़ा सा आप मिमिक्री के बारे में Right. बताएंगे बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ थिएटर ओनली बट ठीक है. slightly different ठीक है. from theater acting. So ठीक है. mimicry I क्या do है? remember for one act play that they stressed on a lot of aspects of theater already. हाँ हाँ तो मैं थोड़ा सा ही बस बताना चाहूंगी. When we talk about theater, there are a lot of forms of theater. जैसे उसमें आता है puppetry, mime, social drama, psychodrama, and ऐसे there are many other techniques of theater. So उसमें से जो हमने select की है वो है mime. These are मिमिक्री. mostly they strike connection with France, हाँ हाँ but originally it comes from Greek and Roman culture. And mime was a form of entertainment when there was no TV, no internet, and mime was a way to express oneself without using any language, words, sentences, nothing. So just with your facial expressions, you had to express yourselves. तो धीरे धीरे जैसे वो डेवलप होते गया, उसके बाद हमने वी केम अप विद पेंटिंग आवर फेस वाइट. बहुत जब ऑडियंस बड़ा होता है और एक डिस्टेंस से आपको देखना होता है, सो यू कैन सी द एक्सप्रेशंस वेरी क्लियरली व्हेन योर फेस इज पेंटेड वाइट. दैट्स व्हाई फेस राइट. वाइट. एंड इसके दो वेरिएंट्स है. जनरली थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एक का नाम है पैंटोमाइम और एक का नाम है नॉर्मल माइम. तो पैंटोमाइम मैम टू क्रिएट एन इल्यूजन अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन. जैसे अगर आपके पास कोई रोप है और अगर आप रोप को खींच रहे, ऐसे दिखा के खींच रहे कि आप रोप खींच रहे, तो दैट इज कॉल्ड अ पैंटोमाइम. whereas a normal mime is you are just just expressing what your mood is. कि अगर कोई स्मॉल बॉय ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर और वो दुखी है, शोल्डर्स थोड़े ड्रूपी रहेंगे, थोड़े उसके आईबॉल कंफ्यूज. तो दिस ड्रूपी लैंग्वेज शोज हर एक अलग अलग मूड के अलग अलग टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट. सो दैट इज व्हाट अ मीम इज. इतना एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना मैं समझा रही हूँ. बट मैम नॉर्मली कभी अगर मिमिक्री हम का. गुस्सा होते हैं हाँ या कभी अगर हम बहुत खुश होते हैं, वी ट्राई एंड सेल्फ टॉक. वी डू अ सेल्फ टॉक लुकिंग एट आवरसेल्व्स इन द मिरर. है ना? जब बहुत खुश होते हैं तो यू जो वेरी नाइस ब्राइट स्माइल लुकिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर है, तो आप मिरर में नॉट वेरी हैप्पी. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइम ओनली. एंड जो हम मिमिक्री बोलते हैं, मिमिक्री इज टू एप समबडी, टू कॉपी समबडी. जैसे हम एक्टर की किसी मिमिक्री कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स की मिमिक्री कर रहे हैं, बच्चे अपने टीचर्स की मिमिक्री करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइम एंड मिमिक्री. आई थिंक बच्चे आजकल मिमिक्री बहुत ज्यादा करते हैं इसलिए वो माइम को भूल चुके हैं. देखा है बहुत उन्होंने. एक्चुअली पर्सनली अगर बिल्कुल मेरे से कोई पूछे तो मेरे को मिमिक्री से ज्यादा अच्छा माइम लगता है. इट हैज अ वेरी डिफरेंट फील टुवर्ड्स इट एंड वेरी बहुत सटल है, बिल्कुल समझने के लिए बहुत आसान है. एंड जो बिल्कुल. फेशियल एक्सप्रेशन एंड ब्लैक एंड व्हाइट का जो फील आता है, इट्स मोर लाइक जैसे एक बैले आप देख रहे होते हो, इट्स दैट नॉवल. माने मजा ही अलग है. बिल्कुल. बट आई बिलीव यहाँ पे बच्चों को ज्यादा फॉर मी माइंड समझ दिस में इज नहीं आया. हाँ जी. So they are more into mimicry ओके. because starting with Johnny Lever, Johnny ओह Lever ने तो actually mimicry को एक उस पे पहुंचा के रख दिया. अमित श्रीवास्तव हो गए, जॉनी लीवर हो गया, इन लोगों ने मिमिक्री के एक अलग मकाम बना दिए. एंड कपिल शर्मा शो जो आजकल चलता है, आई थिंक वो मिमिक्री ही होती है मोस्टली. और क्या होता है वहां पे? दो आई डोंट वॉच दैट बट
हाँ बिल्कुल जी, जो व्हाट्सएप में लोग भेजते हैं उन सब में तो मुझे वो मिमिक्री ही दिखाई देती है। सो बेसिकली हाउ विल यू से कि जैसे मिमिक्री क्यों हम डिस्कस करते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस मिमिक्री में उसका करेक्ट। क्या इम्पोर्टेंस है? कितना माने, हाउ विल यू से मिमिक्री एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को हम लिंक राइट, करें तो? जैसे जैसे आपने बोला कि आपको माइम ज्यादा पसंद है मिमिक्री से। मिमिक्री इज आपके सामने कोई लाइव एग्जांपल है और आप उसको कॉपी कर रहे हैं, दैट्स राइट। बट राइट। माइम में यू आर एक्सप्लोरिंग अ सिचुएशन, तो उसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अभी आई कांट शो इट टू यू ऑन कैमरा, बट ये एक छोटी सी एक्टिविटी मैं बताती हूँ जो आप फैमिली में अपने कर सकते हैं। कोई भी एक गाना दे दीजिए दमशराज की तरह, और फाइल कवर से अपना मुंह ढक लीजिए और सिर्फ हाथ से वो गाना या एक फ्रेज एक्सप्लेन करने का ट्राई करिए। और सिमिलरली सेकेंड टाइम अपने हाथ पीछे बांध लीजिए और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन से वो फ्रेज या वो मूवी का सॉन्ग आप एक्सप्रेस करने एक्सप्रेस की करने का कोशिश ट्राई करें, करिए। हाँ। बोथ वेज इट डजंट वर्क आउट। ट्रू। हाँ जी, दोनों वेज इट डजंट वर्क आउट वेरी वेल। योर फेस, योर बॉडी, योर हैंड्स ऑल हैव टू वर्क इन टैंडम। अगर आपको कुछ एक चीज कन्वे करनी है तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स, ये भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। सो माइम में ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। फेशियल एक्सप्रेशंस तो ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इस आर्ट फॉर्म में वी आर वेयरिंग अ कंप्लीटली ब्लैक ड्रेस, अ ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट, एंड ओनली योर हैंड्स एंड योर फेस आर वाइट, तो वो ऑफ कोर्स एकदम हाईलाइटेड होते राइट। हैं। एंड मिमिक्री, आई थिंक जब भी हम करते हैं मिमिक्री तो आई थिंक दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो, बट व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव सीन इज आई बेसिकली डोंट एंजॉय मिमिक्री जो कि किसी का मजाक उड़ाती है या किसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे जाती है या फिर बिल्कुल किसी को बिलिटल करती है। आई पर्सनली डोंट बिल्कुल एंजॉय। आई मिमिक्री शुड बी पर्सनली व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो, आपका भी यही ख्याल होगा शायद, कि अगर हम मिमिक्री करते हैं तो फिर वो ऐसी होनी चाहिए कि देख के मजा आए, हंसी आए, जो थोड़ा टाइम हम बिल्कुल स्पेंड करते हैं हम बिल्कुल उसको इंजॉय करें और अपनी तकलीफ उतने टाइम के लिए हम भूल जाए। राइट। इफ somebody is able to make you laugh, बिल्कुल। अब बिल्कुल। जैसे जॉनी लीवर की ही बात हुई है, ही सच अ ग्रेट दिस इज एक्टर, गाय अनफॉर्चुनेटली, हाँ जी, ही सच अ ग्रेट एक्टर, तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि या नहीं कि नहीं, आप लॉट ऑफ बोलिए। पीपल, हाँ जी, जो मेंटली इतने डेवलप्ड नहीं है, दे आर ऑल्सो स्टेपिंग इनटू ऑल फील्ड्स, जिनका ज्यादा होराइजन इज नॉट वेरी वाइडेंड, या जो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। So this is the result. I mean, whatever is coming, say live on TV हाँ or जी, otherwise, it might hurt the sentiments of a lot of people, which is not एग्जैक्टली। right. एंड बाकी दोनों चीजों के लिए आई वुड से कॉन्फिडेंस इज अ मस्ट, चाहे हम माइम में जाएं या बिल्कुल मिमिक्री में जाएं। सो एक आपका बिल्कुल क्राइटेरिया कॉन्फिडेंस भी था इसमें कि हाउ कॉन्फिडेंट द बिल्कुल चाइल्ड इज और द या पार्टिसिपेंट और द एडल्ट इज परफॉर्मिंग दीज जनरली टू थिंग्स। मेरे लिए पुशिंग अ चाइल्ड इज नॉट द सॉल्यूशन। आप चाइल्ड को उसके स्ट्रेंथ से अवेयर जब कराएंगे, that time the child will be able to be will be able to perform and be confident. So like I have said in my opening line that theater is a form to connect to oneself. हम अपने फीलिंग्स को कितने अच्छे से समझ सकते हैं, जब हम अच्छे से समझेंगे तभी हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। सो ओके। फॉर मी, theater या any art form for that matter, every child at least is a born actor, आप बोल सकते हैं, is a born artist. उसमें बस थोड़ा बहुत हमें होन करना पड़ता है। एंड व्हाट वी गिव एज ट्रेनिंग, हमें लगता है कि हम बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, हम बच्चे को सिखा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस उसका जो आर्टिस्टिक कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, वो हम कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं उसको। हाँ हाँ। सो मेरे हिसाब से अगर छोटे बच्चे थोड़ा भी एक्सप्रेस करते हैं, tell them more about emotions, tell them more about their whole body
should show that particular mood. ऐसे नहीं है कि हाथ बहुत ही खुश है, फेस बहुत दुखी है, या फेस बहुत ही खुश है बट बॉडी बहुत ही ऐसे लिम्प करके चल रहा है, दुखी है. So एग्जैक्टली जो it should be in इट tandem, शुड नॉट like बी I'm लाइक saying. हाँ ऐसे झुका हुआ सा, तो मीन्स एक वो आई थिंक कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल. उसका पोस्चर एंड ओवरऑल हाउ ही कैरीज बिल्कुल. हिमसेल्फ एंड इज दैट Absolutely. एनर्जी बीइंग पास्ड ऑन टू पीपल इन फ्रंट. आई Absolutely. थिंक वो भी कॉन्फिडेंस के ही अंदर गिना जाएगा कि इज इट अ वेरी Correct. लेजी वॉक और स्लम्प वॉक हाँ और जी. आर हाँ योर जी. शोल्डर स्ट्रेट. आई थिंक ये सारे कॉन्फिडेंस के अंदर Absolutely. ही पॉइंट्स आएंगे. ओके, नेक्स्ट वन जी. ऑफ योर क्राइटेरियाज इज इमोशनल कंटेंट. सो आप इमोशनल Right. कंटेंट पे हाउ विल यू लाइक क्लैरिफाई दैट? How I'm planning to judge. हाँ जी. यस. तो माइम इज ऑल अबाउट योर एक्सप्रेसिव एबिलिटी. तो जैसे माइम में एक छोटी सी बात कि एक एक फूल मिल गया है और वो फूल को देख के वो बच्चा बहुत खुश हो गया है. सो दिस कैन बी अ 2 मिनट माइम कि वो जंगल में ढूंढ रहा है फूल या कहीं गार्डन में ढूंढ रहा है, एक बहुत प्रिटी सा फूल मिला. थोड़ा वीडियो पॉज हो गया यहाँ पे एकदम से. आई थिंक देयर सम इंटरनेट इशू अगेन वी आर फेसिंग टुडे. राधिका जादव जी की यहाँ से वीडियो नेचर, फ्रेम. बी इट विथ हाँ. वन सेल्फ, बी इट विथ somebody else, आई एम ओके विथ either of them. बट इसमें इमोशनल बैकग्राउंड, वो बच्चे को अपना जो उसको दिखाना है वो कितने अच्छे से समझा है. ऐसे नहीं है कि मम्मी ने बोल दिया है कि ये करके दिखा दो तो वो दिखा रहा है. आई डोंट वांट समथिंग लाइक दैट. इट कैन बी अ वेरी सिंपल थिंग. छोटे बच्चों के लिए बहुत छोटी छोटी बातें मैटर करती है. आई माई सेल्फ हैव अ 4 year old डॉटर. सो आई नो कि हर एक छोटी चीज, हर एक पेंसिल, हर एक इरेजर, हर एक ड्राइंग, उनका सोचने का नजरिया ढंग अलग ही होता है. So ट्रू. I want parents to support that, and that's for me to judge the emotional connect जितना अच्छे से वो कर पा रहा है. So एग्जैक्टली. being in theater after so many years, शायद मैं समझ सकती हूँ कि कहाँ बच्चा मैकेनिकली कर रहा है और कहाँ बच्चा अपना दिल लगा के अपना पूरा उसमें सोल डाल के कर रहा है. बिकॉज हमारे So पास that is what I कैटेगरीज mean. हैं. वीव गॉट 4 कैटेगरीज. किड्स Right. कैटेगरी 1, 2, 3, 4 and it's ranging from 3 years to 6 years, 7 years to 11 Right. years, 12 to 14 Right. and 15 to 18. तो ये हमारे पास Right. बच्चों की कैटेगरीज है. सो बेसिकली फॉर द पेरेंट्स जिनके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, योर चाइल्ड विल बी जज्ड एज पर द कैटेगरी द चाइल्ड इज इन. तो जो 6 से, अगर से 3 से 6 के बीच में बच्चा है, तो 3 से 6 के बच्चे की जो जिस तरीके से वो उसको एक्ट करना चाहिए, जैसा उसका रिएक्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल. ऑब्वियसली 3 से 6 के बच्चे की जजमेंट 7 से 12 के, जो 7 से 11 का बिल्कुल. बच्चा है उसकी जजमेंट से अलग होगी. उसका बिल्कुल जो अलग. कैलिबर ही अलग है बच्चे का, तो You're जजमेंट भी right. अलग ही होगी. You're right. ये एक थोड़ा सा पेरेंट्स को ना वो रहता है कि मैम हमारा बच्चा छोटा है. तो मैं यही बहुत बताना चाहती हूँ, हम अपने बच्चों को बहुत डिवैल्यूएट करते हैं. हमारे बच्चे बिल्कुल. इतने बुद्धू नहीं है जितना हमको लगता है. वो हमसे बहुत आगे है. एंड You're right, Mrs. Gai. वी जस्ट अंडर वैल्यू देम बहुत ज्यादा. हम उनको स्पून फीडिंग. आई थिंक वी शुड सेट देम फ्री टू काइंड ऑफ लाइक Right. टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. हम लोग हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हैं कि छोटा है, छोटा है, बट बिल्कुल. आई थिंक दे आर वेरी हमें रिस्पॉन्सिबल. हाँ जी. हाँ जी. मिसेस गई, एज पेरेंट्स वी ऑल्सो नीड टू लेट आवर गार्ड डाउन. हमें एक पर्टिकुलर वे में सोचना, एक्सप्रेस करना सिखाया गया है. सो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट जो हमारे बच्चे स्पॉन्टेनियसली करते हैं. ट्रू. We want them to behave in a certain way. We want them to act in a certain way, respond in a certain way, which is wrong on our part. ट्रू. ट्रू. तो वेरी ट्रू. अगर हम वो स्पॉन्टेनिटी को किल ना करें तो बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से. अभी हम इस पे आते हैं. एक आपका था बेसिकली कंटेंट. कंटेंट को तो हम वैसे पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक इट शुड बी वेरी राइट. पॉजिटिव. माने किसी को हर्ट नहीं करना है या किसी के सेंटिमेंट्स. इट बिल्कुल. कुड बी बिल्कुल. स्टेट वाइज और एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीबडी एट एनी आई स्टेज. वुड और आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग हियर मिसेस गई. अगर मिमिक्री में एंट्रीज है, हाँ uh, है.
सो आई वांट टू टेल द पेरेंट्स कि जिसकी भी वो मिमिक्री कर रहे हैं, अगर वो प्रेफरेबली उनके सर्कल में है, तो प्लीज जिस पर्सन को वो एनैक्ट कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए. दैट्स ओके, इम्पोर्टेंट. राइट राइट. या means it's just an ethical part. ऐसे नहीं है कि now if he is the child is enacting an actor, it's not possible to contact the actor or the actress. एग्जैक्टली. But या बट अगर आप किसी टीचर को कर रहे हैं, आपकी प्रिंसिपल को कर रहे हैं, आपके घर पे जो हाउस हेल्प आ रहे हैं उनको कर रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि जस्ट आई मीन फॉर योर एथिकल ऑन वेरी ट्रू. एथिकल ग्राउंड्स वो पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड कि मैं आपकी मिमिक्री करने वाले हैं हम आपकी. सही है. या एंड इट इज एथिकल ऑल्सो. इट इज एथिकल. अब जैसे लाइक व्हेन यस जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक क्लास 12 जब पासिंग आउट होती है तो टीचर्स की तो 100% राइट मिमिक्री की जाती है. सारी टीचर्स की रैगिंग उसी दिन के लिए वो लोग रोक के रखते हैं कि सो एंड सो टीचर. एंड जैसे बच्चे बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, दे एक्ट लाइक अस, सो वी नो कि आज हम टारगेट पे हैं. और जो हमने साल भर जो करा था, बिल्कुल एंड देन वन ऑफ दिस बिल्कुल उसमें ये भी होता है कि वो लोग कहते हैं कि लाइक एक्टिंग करके दिखाते हैं एंड गेम्स टाइप की भी रखते हैं कि बताओ ये कौन सी टीचर है. लाइक यू नो हाउ वेल यू बिल्कुल हैव टेकन इन द कैरेक्टर ऑफ योर टीचर अब तक कि आप उसकी कितने अच्छे. एब्सोल्युटली सो हम टीचर्स जानती हैं कि आज 12th का फेयरवेल है और आज ये 11th के बच्चों ने हमारी मिमिक्री करनी है. सो वी आर प्रिपेयर्ड बिल्कुल फॉर इट. वी नो इट. एब्सोल्युटली हमको पता है वो करेंगे. सो दिस इज वेरी एथिकल कि आप चाहे जिसकी भी करें एंड नोन में है तो उनको जाके माने उनको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आप करो. कल को कोई शोर शरा वो नहीं होना चाहिए कि हाँ हाँ हमारी कर दी बिल्कुल हमारे. बिल्कुल माने आप हमारे को नीचा दिखाना चाहते हैं. लाइक पीपल कैन बी टची हाँ अबाउट जी वेरी मेनी थिंग्स एंड राइट स्पेशली व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट इट. तब आई नो सामने से हमला आता है. सो आई नो दैट्स अ वेरी आई वैलिड नो पॉइंट. आई थिंक पीपल शुड फॉलो दिस एथिकल पॉइंट. राइट राइट एंड एक और आपका था इसमें जो आपने कहा था ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना राइट एबिलिटी, राइट उसके ऊपर आप तो जैसे फेस एंड बॉडी बेसिकली वी हैव कवर्ड इट बट समथिंग न्यू राइट दैट इज कमिंग टू योर माइंड जिसके ऊपर आप थोड़ा इलैबोरेट कर सके. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. जब हम मूवी हॉल में से बाहर निकलते हैं मूवी देख के, सो आइदर यू आर वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि वाओ पैसा वसूल मूवी थी एकदम अच्छी लगी, या सही तो है. यू आर वेरी अपसेट कि ओ नो मेरे पैसे तो वेस्ट हो गए, मूवी तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी. So that is what your overall feel is. So there is a great I mean this is like an all round क्या बोलूं मैं, cumulative of all the other categories together. ऐसे हो राइट. सकता है कि बच्चे के शायद एक्सप्रेशंस ज्यादा ठीक नहीं थे, या किसी एक बच्चे के हैंड जेस्चर्स इतने ठीक नहीं थे, बट फिर भी वो मेरे दिल को छू गया है वॉट एवर ही हैज डन. इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइनी बिट हैज टू बी परफेक्ट. जैसे हम नॉर्मल ट्रू. फैंसी ड्रेस में हर एक पॉइंट्स ऐड करके फाइनल क्यूमुलेटिव निकालते हैं, देर इज हाँ एन हाँ. ओवरऑल इम्पैक्ट ऑल्सो ऑफ एन एक्ट. एक थिएटरिकल एक्ट का या नॉर्मल किसी भी एक्ट का एक ओवरऑल इम्पैक्ट होता है. तो उसमें आप शायद माइनर थिंग्स को थोड़ा सा नजरअंदाज ओवरलुक कर करके. सकते हैं. हाँ जी यस. एक और सो चीज दैट लाइक इज आई व्हाट वुड आई लाइक. मीन बाय द हाँ. ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द वीडियो और द प्ले. या वीडियो. वन जी मोर हाँ थिंग जी जो भी हमारे देख रहे हैं आई वुड लाइक टू टेल देम लाइक व्हेन यू मेक वीडियो मेक श्योर हाँ दैट जी द बैकग्राउंड बिहाइंड यू इज क्लीन. राइट योर ऑडियो इज visible माने audible. You are audible क्लियर very हाँ clearly. जी It should राइट not be very shaky. आपका कैमरा एक जगह पोजीशन, आप हिलते रहिए. अगर आप राइट डांस कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी मूवमेंट्स होंगी, बट कैमरा ऐसे राइट ऐसे नहीं हिलना चाहिए. कैमरा बिल्कुल एक जगह स्टेडी होना चाहिए. अगर आप भी हिल रहे हो और राइट कैमरा भी हिल रहा है तो बहुत राइट ब्लर्ड इफेक्ट आता है. राइट एंड बाकी वीडियो की क्वालिटी तो है ही. लाइक दूसरा मैंने इन सबको बताया कि काफी लोग आईफोन से कर रहे हैं तो आईफोन में क्या होता है एमओवी फाइल्स बनती है. राइट सो अगर द हमें भेज फॉर्मेट रहे इज हैं तो नॉट एडिबल. हाँ फॉर्मेट इज नॉट ग्लोबली एक्सेप्टेड हाँ जी बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल फॉर्मेट इज MP4 जो कि चला आ रहा है. तो कई बिल्कुल सॉफ्टवेयर अभी फेसबुक अपना वीडियो अपडेट का कर रहा है. तो राइट
अभी तो वो MP4 कभी कभी ले लेता है, कभी कभी वो उसको ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देता है. सो आई वुड सजेस्ट जो भी बना रहे हैं अपनी, चाहे माइम की बनाओ, चाहे मिमिक्री की बनाओ, चाहे डांस की बनाओ, चाहे क्ले मॉडलिंग की बनाओ, चाहे किसी की भी बनाओ, जो वीडियो होती है उसको मैं बार बार ये कह रही हूँ कि यू मस्ट पुट इट इन अ लैंडस्केप मोड सो दैट आपका कटेगा नहीं, आपका पूरा स्ट्रक्चर 16:9 के रेशियो में आ जाएगा, एंड हमारे जजेस को भी आपकी एक्सप्रेशन देखने में दिक्कत नहीं होगी. बिकॉज अगर इतनी बड़ी चीज इतने में श्रिंक कर दी जाएगी तो आई एम श्योर फेशियल एक्सप्रेशन आपको भी नहीं दिखने वाले हैं, है ना राधिका? अगर राइट, बिल्कुल 16:9 की वीडियो नहीं होगी लैंडस्केप में तो फेशियल एक्सप्रेशन तो छोटा सा ही हो गया ना. बिल्कुल. तो फिर बिल्कुल. बच्चा वहीं पे जजमेंट में मार खा जाता है, चाहे उसका कंटेंट अच्छा है हाँ पर जी. वो विजिबल ही नहीं है. बिल्कुल. बिल्कुल. तो ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें हैं जो छोटी छोटी जो बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है, एंड राइट. बस इसी का ध्यान रखना है. सो आई डोंट थिंक ये बहुत टफ टॉपिक था, माइम एंड मिमिक्री. इट्स लाइक हम लोग क्लास 1 से करते आ रहे हैं एंड इट्स समथिंग बिल्कुल. दैट कम्स नेचुरली टू एनी चाइल्ड. मिमिक्री नंबर 1 है. माइम का आपने राइट. बता दिया है कि माइम क्या है, थोड़ा देखते कम है लोग तो समझ कम आती है, पर मिमिक्री तो हम लोग अननोइंगली करते हैं. इवन अगर हम अपने किसी को बताते हैं ना, पता उसने क्या कहा था, तो उसमें भी हम उस बंदे की मिमिक्री करके बताते हैं कि उसने तो ऐसे बिल्कुल. कहा था. तो वो भी एक मिमिक्री बिल्कुल. ही है, बस जस्ट हम थोड़ा सा क्रिबिंग कर रहे होते बिल्कुल. हैं, तो इसलिए वो अनजाने हाँ जी. में डिफॉल्ट निकल आती है और हम रियलाइज भी नहीं करते हम किसी की मिमिक्री कर रहे हैं. सो Yeah. बेसिकली यही था. सो थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. आई Thank you बिलीव so यू much, Miss Gai. शिफ्टेड, आपने शिफ्ट किया है, यू आर मूविंग टू अ I न्यू just प्लेस. recently moved to a new place. हाँ जी. हाँ जी, लॉट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सो मच, एंड अभी तो सेटल भी नहीं हो पाए हो. This एंड is an honor for me. Thank you so much. वी आर इंडीड वेरी हैप्पी, बहुत खुश है कि आप आए, इतना टाइम निकाला हमारे बच्चों के लिए, एंड लाइक यू नो यू टुक Thank आउट you so टाइम much. फॉर देम. कमिंग आउट लाइव इज नॉट नहीं, इजी. नहीं, नहीं. Not लाइक at all. सब काम छोड़ के आना पड़ता है हमको, अलग होके. नहीं. घर में सबको बोल दिया जाता है कि चुप बैठो, चुप नहीं करना. सो मेरे याद होता है टेल योर मदर एंड एवरीबॉडी ऐसे साइड में घुस जाओ, दिखाई मत देना मुझे, पीछे से कोई शोर नहीं करेगा. सो आई थिंक पूरे घर का कंट्रीब्यूशन होता है. सो थैंक यू वेरी मच, एंड योर Thank you फैमिली एंड so much. एवरीबॉडी. I thank all the viewers also who have joined in today, all the kids and parents. And thank you so much, Mrs. Ghai, for having me over. It is my honor and pleasure. Thank you. चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, Bye bye. सी यू. Yeah. So that was Ms. Radhika Jadhav for you with mimicry. And up within 15 minutes, we'll be moving on with the next session, live session with Aman sir. And he'll be coming here for your instrumental music. So हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के हैं हम उनके साथ भी पूरी डिटेल में बात करेंगे एंड ट्राई करेंगे जितने भी आपके क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है वी कैन सॉल्व देम. And again, we'll be going bilingual, so I don't think आपको ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए उसमें. Till then, in next 15 minutes, we shall be back with you. Till then, आपको जितना भी पेंडिंग काम है फटाफट खत्म कर लीजिए, ठीक है ना? Okay, see you. Bye bye.